Hey there, welcome back to my channel. Welcome back to the Hack with Infi series. So in this series, we will be solving the next problem in the Hack with Infi journey, and this problem involves concept from DSA, that is multi-source BFS. Okay, so if you have solved a problem like rotten oranges, है ना, then you will be easily able to get this thing done on your own. If even if you haven't, then I'll share the link to the rotten oranges problem. You can try the problem and then you can come back to solve, or you can first learn what is multi-source BFS, then you can try solving this one, because this is nothing but the standard application of the same algorithm. They just builded a story over the rotten oranges problem, nothing more than that, and we'll be solving this one. Just stay with me and let's start with the problem. Has begun spreading across the kingdom. The land is represented as an n into m grid, where each cell reflects the state of that region. I means the infected region, H healthy region, hash sealed zone. No one can enter, neither humans, nor aliens, nor a king, nor a queen, nothing. Okay? Fortified barriers are there. So there is a kingdom. It has some states. The kingdom is represented by the grid of dimensions n into m. So the kingdom is represented by a grid, like a grid. You must have solved problems related to grids. It's represented by a grid. Like this grid is 2 into 2. It can be 2 into 3, 5 into 10, anything else. So here you can see that the plague starts infecting this kingdom. I means the infected region, H means the healthy region, hash means the sealed zone. So the plague falls like this. Every second, any healthy region H that shares a side with an infected region. So let's say this region is infected, I. Now this is healthy, this is healthy, this is healthy. Now this shares a side with the infected region. I can see this side. This one also shares a side with this region. So in 1 second, after the 1 second has elapsed, this is going to infect this, this is going to infect this. So after 1 second, the plague will be like this. This is plagued, this is plagued, this is plagued, this is not plagued. Then in 1 more second, I can see that this healthy region shares the side with the plagued region, also another plagued region. So after 1 second, either this is going to infect it or this is going to infect it. So after 1 second, all of the territory, all of the kingdom is going to be infected along with the king. Queens will also be infected if king is infected, you know. So that was the thing. And now what you are a royal strategist for that kingdom, and you need to first calculate how much time it takes to this iron plague takes to infect the entire kingdom, the healthy regions H, so that you at least know, you can predict, like, okay, I have this much time, I can take some initiatives to prevent this. So you are calculating time. So how much time we have before we are ruined. Okay. Now if some regions can never be infected due to sealed barriers, we will return -1. So if so all you have to do is to return the time it takes so that the entire territory, entire kingdom, or the entire grid is infected. If it is infected, if there are some reasons, if there are some sealed barriers, so you find some cells which are not infected, then in that case you will return -1. So if there is even a single barrier in the grid, that means you will not be able to no, yeah, if some reasons stays, like you can take this type of example. Let's say let me explain this thing. So how the barriers are going to affect, let me explain. So let's say this is a healthy region and there is a barrier, there is a barrier. This is infected, 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 this is infected. Now I can see
this healthy region do not share a side with any infected region. This side, this is sealed, this is sealed, so this will never be infected, है ना. So if this will never be infected, so after let's say all of the other regions are infected, there is no way to infect this particular state. So that means this particular for this particular case I will return -1. Cool है. तो ये है. So initially you have some infected regions, you have some uninfected not infected regions, and you have some sealed regions. And after you have performed all this process, after you have performed all the process, you will reach a state where maximum regions will be infected. जितने हो सकते हैं इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. अब आपको in that particular instance you need to check if all of the regions are infected, then all you have to return is to return that minimum time to infect them all. And if it is not possible to infect at least one region, then you will return -1. Like in this particular case I can see that this will never be infected, ठीक है. Cool है. तो कुछ नहीं है, ये इसी प्रॉब्लम का थोड़ा सा वेरिएशन है. तो इन्होंने क्या किया, हैक विद इन वाले प्रॉब्लम सेटर्स ने इस क्वेश्चन को देखा क्या आता ही होगा उनको ऑफ कोर्स, अगर प्रॉब्लम सेटर्स है तो उन्होंने उस पर एक स्टोरी बिल्ड करके उसमें टेस्ट केस जनरेट किए एंड उन्होंने एक प्रॉब्लम बना दी. डायरेक्ट प्रॉब्लम आ गया. अब ये इसको वेरिएशन मानो ना मानो, मुझे नहीं लगता ये वेरिएशन है. अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है जो ये सब वेबसाइट्स पे टाइम स्पेंड करता है, कोड फोर्सेस लीड कोड वगैरह पे, तो उसको तो पता चल जाएगा कि हाँ ये तो वही है, ठीक है. तो मतलब आपको यू नीड एक्सपीरियंस यू नीड सम एक्सपीरियंस. इतना एक्सपीरियंस तो चाहिए कि आप, वैसे तो ये जीपीटी से मिल जाएगा, बट फिर भी इंटरव्यू में क्या करोगे. इवन इफ़ यू गेट दिस क्वेश्चन डन, देन व्हाट विल यू डू इन इंटरव्यू. आई हैव सीन सम एग्जांपल्स जिन्होंने ये सब करके ये हैकाथॉन्स वगैरह निकालते हैं या टेस्ट निकालते हैं, है ना. कुछ सक्सेसफुल भी हो जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु गॉट सक्सेसफुल इन दिस थिंग्स, जो मतलब मिलजुल के निकालने वाले, बट उसका कोई मतलब नहीं है, आई वुड से, है ना. तो बट आई बिलीव, आई डोंट नो दैट्स योर चॉइस व्हाट यू बिलीव, बट मैं ये मानता हूँ कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी इज़ फार बेटर देन द क्वांटिटी, है ना. क्वांटिटी से क्वालिटी बेटर है. Quality always trumps quantity. This is what I believe, and this is you should also believe. Quality trumps quantity always. And भाई उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है मिलजुल के करने का. कब तक करोगे. इंटरव्यू निकाल लोगे, उसके बाद जॉब चलेगी फिर, है ना. यू विल ऑलवेज बी इनसिक्योर. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको नहीं करनी है ना. डू नॉट गो फॉर द शॉर्टकट्स, आई वुड से. Results will always be there if you are putting efforts. If not today, tomorrow, day after tomorrow, 1 month later, 6 months later, 1 year, 5 years later, results will always be there if you follow the right path, the right way. And if you go for shortcuts, you will not, I don't think you will achieve anything meaningful, है ना. बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है. लेट्स मूव टू द जो काम की बात पे आते हैं. कहाँ थे हम, यहाँ थे. तो क्या करना है इसमें. सो व्हाट डू वी हैव टू डू इन दिस. ऑल वी हैव टू डू इज़ टू मार्क द अनइन्फेक्टेड रीजन्स एंड इन्फेक्टेड रीजन्स. तो इन्फेक्टेड रीजन्स जो हैं वहाँ से प्लेग शुरू हो रही है, तो देयर आर मल्टीपल इन्फेक्टेड रीजन्स, और इन ईच सेकेंड जो इन्फेक्टेड रीजन्स हैं उनके साथ जो
वॉल शेयर कर रहे हैं अनइन्फेक्टेड रीजन्स, वहाँ पे वो स्प्रेड हो जाएंगे, स्प्रेड कर देंगे अपने इन्फेक्शन को, एंड दैट इज गोइंग टू इन्फेक्ट द एडजेसेंट सेल्स. In 1 second all the adjacent cells which are uninfected will be infected, है ना, and that is going to and along the, like going through this process entire region will be infected after some time, and you need to return that minimum time the first instance when all the cells are infected. ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इसमें आगे कैसे करना है इसको सॉल्व. तो देखो यहाँ से थोड़ी थोड़ी BFS की स्मेल आ गई होगी आपको अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं. यू विल गेट अ इंट्यूशन ऑफ BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. ऐसे मेरे को तो आ गई थी जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा था. आपको नहीं आई मतलब आपने ये सॉल्व नहीं किया. इसको ढंग से सॉल्व करो, इसके बाद जब ये क्वेश्चन देखोगे तो आ जाएगी. let's take an example how the things are going to work, how things are working. IH, so let's take this example. So the grid that we have in the first example is I, H, H, H. तो यहाँ पे this one is infected region, this is uninfected, this is uninfected, this is uninfected. ठीक है, तो क्या करेंगे, this is going to spread this way, this is going to spread this way in 1 second. So after 1 second, how the grid is going to look like, it's going to look like this, it's going to look like this, I, and here you will have again uninfected region. क्योंकि देखो ये एडजेसेंट सेल है तो ये यहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा, ये भी एडजेसेंट सेल है तो ये 1 सेकंड में इन्फेक्ट कर देगा दोनों टेरिटरी, दोनों स्टेट्स को. 1 more second elapsed and you will move here, 1 more second and I then I again here. ठीक है, so 1 more second and the entire region is infected. So the answer is 2 seconds. ठीक है, and that's all. This is the first example. अब देखो यहाँ पे ये अनइन्फेक्टेड रीजन के साथ ये वॉल ने शेयर किया, ये शेयर कर रही थी, तो यहाँ से ये इसने इन्फेक्ट कर दिया, इसने या इन दोनों में से कोई ना कोई इसको इन्फेक्ट कर देगा. सो यू विल गेट दिस रीजन टू बी इन्फेक्टेड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 more example एंड यू विल बी देयर. देखो मुझे पता है नहीं समझ आ रही होगी बहुत सौ को, बट यू विल लाइक एग्जाम्पल्स लो. नहीं समझ आ रही है तो 2-3 एग्जाम्पल्स लो, फिर भी नहीं आ रही है तो 2-3 और लो, और कोई वे नहीं है ना. अच्छा, वो टाइमिंग अपने आप डिक्रीज़ करती रहती है. ऐसे होता है ना कि यार कि मैं क्वेश्चन पढ़ता ही रह जाता हूँ, इतनी बड़ी स्टोरी मेरे को समझ ही नहीं आती. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप नए हो इस फील्ड में, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती. अब मैं इस क्वेश्चन को जब ऐसे क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैं पूरा नहीं पढ़ता, 2-3-4 लाइनें पढ़ूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि अच्छा ये तो वो है ना. या कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर है उसको पता चल जाएगा अच्छा हाँ ये तो वो है. आपको नहीं पता चल रहा जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस. ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ ये चीज़ें याद ही हो जाती हैं ना. मतलब हाँ, मेमोरी गेम भी है, मैं कहूँगा मेमोरी गेम ही है ये मोस्टली. बाकी थोड़ी बहुत मैथमेटिकल स्किल्स भी होती हैं, वो कुछ की अच्छी होती हैं कुछ की नहीं होती हैं. इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स भी होती हैं. ठीक है, टाइपिंग स्पीड का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, उतना नहीं रहता बट रहता ही है. फिर आपकी प्रैक्टिस कितनी की है ये भी डिपेंड करता है. ठीक है, लक कैसा है, डे कैसा है, माइंडसेट कैसा है व्हेन यू आर गिविंग दैट कॉन्टेस्ट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स मैटर. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल इन एनी कॉम्पिटिशन और इंटरव्यू. ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, IH ##HH, IH ##H. So this is the initial thing, and after 1 second, this is the infected region, this is going to infect this adjacent cell. So after any other, we do not have any other infected cells. So after 1 second I can see that I
आई हैश हैश एच एच। 1 more सेकेंड। तो 1 सेकेंड तो हो गया, 1 सेकेंड और लेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज आई कांट, द इन्फेक्शन कांट मूव थ्रू दिस, इन्फेक्शन कांट मूव थ्रू दिस. So that's all. This is the final configuration we can get. In this grid I can see that 2 cells are still not infected. Hence the answer would be -1 for this case. The virus fails to infect the kingdom, the entire kingdom. ठीक है, तो इसमें देखो सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। आपको क्या करना है, इसमें BFS यूज़ करना है। BFS थोड़ा सा मतलब अलग BFS है। क्यों? क्योंकि देर आर मल्टीपल सोर्सेज। आई कैन सी दैट कि थोड़ा ढंग का एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो दिया ही नहीं है इन्होंने, हाँ बकवास एग्जांपल्स नहीं हुए हैं, तो थोड़ा ढंग का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। आई 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 एच एच एच। यहाँ चलो हैश ले लिया, ठीक है। तो आफ्टर 1 सेकेंड हाउ द थिंग इज गोइंग टू लुक लाइक। देखो अब कहाँ इन्फेक्शन है। आई कैन सी इन्फेक्शन इज हियर, सो दिस इज गोना स्प्रेड टूवर्ड्स लेफ्ट। नीचे वाले सेल को भी इन्फेक्ट कर देगा, ये है, इसको इन्फेक्ट कर देगा, इसको इन्फेक्ट कर देगा, ये है, इसको इन्फेक्ट कर सकता है विच इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड, और पीछे वाले को इन्फेक्ट कर देगा, आगे कुछ है नहीं। तो आफ्टर 1 सेकेंड द थिंग, दिस थिंग इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। आई इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड, पहली पूरी रो इन्फेक्ट होगी। इन्फेक्टेड नॉट इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड नॉट इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड, ये भी इन्फेक्टेड है ना, नहीं ये इन्फेक्ट नहीं हुआ, इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड सील्ड। 1 सेकेंड के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन है। 1 more second elapsed, I can see this is not infected, this is not infected and this is not infected. So this shares a side, so this is going to infect this. ये भी कर सकता है, एक ही बात है। ये इसको भी कर देगा, क्योंकि ये जो रीजन है वो ऊपर वाले, नीचे वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले, चारों को इन्फेक्ट कर सकता है एक ही सेकंड में। इन दोनों को इन्फेक्ट, इट इज़ गोइंग टू इन्फेक्ट बोथ ऑफ दीज एडजेसेंट सेल्स। दिस इज गोइंग टू इन्फेक्ट this territory, now this state. So after 1 more second the thing would be like this. आई सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। इन्फेक्टेड 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 हैश। तो 1 more second एंड यू आर देयर। सो कितना टाइम लगा? 2 सेकंड तो लगेंगे लगेंगे। कैन यू टेक, क्या उससे कम लग सकता है? नहीं, 2 सेकंड तो लगने ही वाले हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ऐसे करना है कि हमें सोर्सेज कितने थे मेरे जहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होना शुरू हुआ। हाउ मेनी सोर्सेज आई हैड व्हेन द इन्फेक्शन स्टार्टेड टू स्प्रेड? 3। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियली जो मेरे सेल्स थे जहाँ जहाँ मेरा सोर्स था उनको मैंने पुश कर दिया, ये और ये 3 है ना जहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, इनको मैंने पुश कर दिया क्यू में। तो मैंने पुश किया 0 0, फिर मैंने पुश किया 0 2, फिर मैंने पुश किया 2 2 0 1 2 2 2। अब मैंने इसको निकाला 0 0, गॉट इट आउट। तो अब देखो 3 सोर्सेज हैं, 1 सेकंड में तीनों सोर्सेज से स्प्रेड होगा। यही फ़र्क है मल्टी सोर्स BFS और सिंगल सोर्स BFS में। सिंगल सोर्स में एक एलिमेंट होगा और वहाँ से फिर मल्टीपल, वहाँ से फिर आपके दूसरे सोर्सेज जनरेट होंगे। बट फ्रॉम हेयर द सोर्सेज आर ऑल्सो जनरेटिंग फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। तो आपको इन तीनों एलिमेंट्स से आगे बढ़ना है, इन्फेक्शन बढ़ाना है। तो मैंने पहले इसको बाहर निकाला 0 0 को, तो यहाँ से फिर चारों तरफ गया, चारों तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन। तो मैंने देखा इसको इन्फेक्ट किया इसने, इसको इन्फेक्ट किया, तो इन दोनों सेल्स को मैंने पुश कर दिया विच इज़ 0 1 एंड दिस सेल इज 1 0। ये बाहर आ गया। मैंने 3 बाहर निकालने, तो मैंने पहले ही साइज उस वक्त इंस्टेंस पे जो क्यू का साइज था वो कैलकुलेट कर लिया और इन तीनों को बाहर निकाला। तीनों को बाहर निकालना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आई वांट कि भाई हाँ स्प्रेड हुआ है। और एक मैं स्प्रेड वेरिएबल भी यूज़ करूँगा जिसको मैं पहले फॉल्स मार्क कर दूंगा
और जब मैं इन तीनों व्हेन आई विल क्या कहते हैं, व्हेन आई एंड अप स्प्रेडिंग द वायरस फ्रॉम दीज 3 सोर्सेज आई विल मार्क दिस स्प्रेड टू बी ट्रू। और वो तब ट्रू मार्क करना है व्हेन यू आर एक्चुअली स्प्रेडिंग द वायरस। if at least one of these sources is able to spread the virus in at least one of the adjacent cells। ठीक है, तो इसने तो कर दिया स्प्रेड कर दिया, एंड देन स्प्रेड को आप क्या कर दोगे, टर्न कर दोगे ट्रू, क्योंकि दिस सोर्स वाज एबल टू स्प्रेड द वायरस and you pushed 2 more elements in the queue। So if you are pushing the adjacent cells in the queue, that means so whenever you are pushing you will turn this spread to be true। टर्न कर दोगे इसको कि भाई हाँ नया सेल इन्फेक्ट हो गया तो मतलब टाइम बढ़ा, 1 सेकेंड लिया। अच्छा, टाइम तभी बढ़ेगा, टाइम वेरिएबल है जो इनिशियली 0 है, उस वेरिएबल को 0 रखोगे। दिस विल इंक्रीज व्हेन दिस स्प्रेड इज ट्रू। नाउ द सेकंड सोर्स से आगे बढ़ते हैं। सेकंड सोर्स से मैंने फिर चारों डायरेक्शन में गया, इसको इन्फेक्ट किया, इसको इन्फेक्ट किया, पीछे वाला ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है, तो एंड इन दोनों को पुश भी कर दिया मैंने। तो ये हटाया और पुश कौन कौन से हो जाएंगे, ये वाला विच इज़ 0 1 2 3, सो 0 3, एंड ये वाला 1 2। फिर इसको मैंने, इसके एडजेसेंट सेल्स, दिस ऊपर वाला तो इन्फेक्टेड है, तो इसका एडजेसेंट सेल है 2 1 2,1। अब डन है, वी आर डन। तो इसको इन्फेक्ट कर दिया, इसको इन्फेक्ट कर दिया, ये भी इन्फेक्ट हो चुका है, एंड देन 2 2 इज 0 1 2 1 2, ये वाला भी हो गया ना 0 2, हाँ, दिस इज ऑल्सो आउट एंड दिस विल टर्न टू ट्रू। अब ये पहले वाला साइज जो पहली क्यू थी, जो पहले इंस्टेंस पे जो क्यू थी जिसमें 3 सोर्सेज थे, I have dealt with all the 3 sources and the spread has turned true। That means I have pushed at least one adjacent cell out of these 3 sources and hence the time will increase by 1। Now again in the next iteration, the first iteration, this window is dealt with। Now remove this 0 1 0 1, this one, this is infected region, इसके adjacent पे गए, अब इसको false किया, फिर से spread को false किया, adjacent infected है, नीचे वाला infected नहीं है तो इसको infect कर दिया। So since I am infecting this region, this is 1 1, I will push this 1 1 here। Sorry for the bad handwriting, I'll try to improve in the next upcoming videos, maybe bring some better equipments for video recording, editing in the upcoming days। I have pushed this as well and this is already infected and that's all। अब मुझे कौन सी विंडो सेकंड टाइम में निकालनी, ये विंडो में मैं पहला एलिमेंट निकाल चुका हूँ, अब मैं 1 0 को निकालूंगा बाहर, 1 0 1 0, दिस, इसके एडजेसेंट ये इन्फेक्टेड है, नीचे वाला इन्फेक्टेड नहीं है तो इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो इसको इन्फेक्ट कर दिया, तो इसको मैंने पुश कर दिया 2 0 2 0 भी पुश कर दिया इस क्यू में, 2,0, ठीक है, कूल है। तो 1 0 वाला हो गया डेल्ट, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स इसको बाहर निकालते हैं 0 3 को, 0 3 ये है, इसके एडजेसेंट कौन सा है, ये वाला, तो इसको भी इन्फेक्ट कर दिया, ये इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, ये आउट हो गया मेरा, और कोई इन्फेक्ट ये नहीं कर सकता। फिर निकालते हैं 1 2 को, 1 2 ये है, इसके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सारे इन्फेक्टेड हैं, सो दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना, कोई पुश नहीं होगा। अच्छा, ये इन्फेक्ट हो तो इसको पुश कर दिया ना, 0 1 0 1 0 1 2 3, तो 1 3 को भी पुश करना है ना, ये भी इन्फेक्ट हुआ है, जो इन्फेक्ट हो रहा है उसको पुश कर देना इस क्यू में। 2 1, दिस, इसका एडजेसेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो नो नीड टू डू एनीथिंग। 1 1, दिस ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, आउट। 2 0 निकाला, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, ये विंडो थी, सॉरी ये विंडो पे तो जाना ही नहीं अभी, तो ये विंडो थी जो हम यहाँ तक, इतनी विंडो थी 2 1 तक, ठीक है। तो इतनी विंडो मैंने ट्रेवर्स कर ली एंड मतलब ये नए सोर्सेज थे, दीज वर द न्यू सोर्सेज जहाँ से स्प्रेड होगा अगले सेकंड में, ठीक है, स्प्रेड हुआ, ठीक है, एंड स्प्रेड ट्रू हो गया एंड टाइम विल इंक्रीज बाय 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विंडो। अब अगली विंडो में हम इन 3 एलिमेंट्स पे आते हैं, इन 3 सोर्सेज पे आते हैं। तो पहले सोर्स को बाहर किया 1 1 1 1 इज दिस इज इन्फेक्टेड, एडजेसेंट भी इन्फेक्टेड है तो स्प्रेड नहीं होगा,
तो स्प्रेड जो वेरिएबल था वो मेरा फॉल्स ही रहेगा। 20 को बाहर निकाला, 20 इज दिस, इन्फेक्टेड है, एडजेसेंट इन्फेक्ट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो कोई इन्फेक्ट नहीं करेगा, तो ये फॉल्स ही रहेगा। 13 इज दिस, इन्फेक्टेड है, एडजेसेंट इन्फेक्टेड है तो नहीं होगा इन्फेक्ट कोई भी, तो ये फॉल्स ही रहेगा। अब मैं बाहर आया, मैंने देखा स्प्रेड फॉल्स ही है, स्प्रेड फॉल्स ही है मीन्स तीनों सोर्सेज ने किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं किया, तो इन दैट केस टाइम जो है वो नहीं बढ़ेगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो दैट्स योर आंसर, और 2 सेकेंड मेरा आंसर था ही। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सो दिस इज नथिंग बट मल्टी सोर्स BFS। रॉटन ऑरेंजेस अगर आपने किया देन यू विल बी इजीली एबल टू गेट दिस थिंग। अब इसका लिखते हैं अपने कोड। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम डायरेक्ट कोड लिखेंगे। लेट्स जंप टू द कोड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। डेफ min टाइम टू स्प्रेड। कौन कौन से वेरिएबल्स है अपने पास इसमें? एक अपने पास ग्रिड है, n है, m है, और क्या है? ग्रिड है, n है, m है, और क्या है? बस और तो कुछ नहीं है ना। ग्रिड है, n है एंड m है, दैट्स ऑल। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। सो फ्रॉम कलेक्शंस import dq। तो मैंने क्यू बना ली, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, फॉर इस ग्रिड पे ट्रेट करूँगा, फॉर j इन रेंज m इफ ग्रिड I j is I, that is an infected region, and I am gonna push this into the queue. Q dot add this pair I comma j. Elif grid I j is equals to e नहीं है, I है, h है। तो we will also count how many uninfected regions are there। अच्छा, हाउ मेनी इन्फेक्टेड रीजन्स आर देयर, ये भी काउंट कर लेते हैं। ओके, इन्फेक्टेड रीजन्स, टाइम एक वेरिएबल लेंगे, तो इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्टेड रीजन है, इसको इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, ठीक है, कूल है। अच्छा, एच तो हेल्दी रीजन्स है, नॉट इन्फेक्टेड वंस, healthy, sorry for that। so I have my queue ready now। while queue, जब तक ये queue empty नहीं हो जाता, let's bring out the size which is length of this queue, not queue है, QUE साइज आ गया। एंड आई विल इटरेट ओवर इट फॉर I in या फॉर साइज टाइम इटरेट करेंगे, एंड हम नोड निकालेंगे विच इज़ योर Q डॉट पॉप लेफ्ट। अब इस नोड के चारों डायरेक्शन में हम करेंगे मूव, तो डायरेक्शंस एक तो लेंगे, डायरेक्शन मैट्रिक्स लेंगे विच वुड बी, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम x में 1 बढ़ाएंगे, y में कुछ नहीं, पीछे जा रहे हैं तो -1 0, ऊपर जा रहे हैं तो 0 1, नीचे आ रहे हैं तो 0 -1, ठीक है। फॉर अब डायरेक्शंस पे हम मूव करेंगे dx dy इन डायरेक्शंस, तो जो भी आपका नोड, ये तो आपकी आई थिंक वो होगी ना x, y, इस तरह से x, y, तो
नई डायरेक्शन हो जाएगी, एन एक्स वुड बी एक्स प्लस डी एक्स, एन वाई वुड बी वाई प्लस डी वाई। बैटरी ठीक है ना, बैटरी तो कम नहीं हो रही ना, 3% रहेगी यार, ठीक है। बैटरी चार्ज लगा देता हूँ, काम करते हैं इसको बाहर बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, अब मेरे पास नई डायरेक्शंस, नए सेल्स आ चुके हैं। अब मैं देखूंगा कि जो नया सेल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एन एंड नहीं, नॉट लेस देन एन, एंड एन वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एन वाई शुड बी लेस देन एम, एंड वन मोर थिंग वुड बी grid nx ny would be what, cool है। now what, नहीं आई नहीं हेल्दी है अगर, तो उसको इन्फेक्ट करना है, तो इसको कर देंगे स्प्रेड। तो Q जो है मेरा उसमें ऐड कर देंगे एन एक्स कॉमा एन वाई, और what else, what from that, so we have इसको किया ऐड, और स्प्रेड को कर दूंगा मैं, स्प्रेड वेरिएबल बनाना पड़ेगा मेरे को, कहाँ पे, यहाँ पे। इसको फॉल्स किया, और अगर मैं स्प्रेड कर रहा हूँ वायरस तो स्प्रेड मेरा बन जाएगा ट्रू, ठीक है, कूल है। एंड हेल्दी रीजन मेरा जो है वो एक कम हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी देखूँ कि अगर हेल्दी रीजन 0 है तो इसका मतलब प्रिंट नहीं, रिटर्न 0, यहीं से मेरा आंसर रिटर्न कर दूंगा मैं, ठीक है। और जब मैं इस लूप से बाहर आया, वो पूरे सारे सोर्सेस एक्सप्लोर कर लिए, अब मैंने यहाँ देखा इफ़ स्प्रेड इज़ फॉल्स ना, इफ़ स्प्रेड इज़ ट्रू देन टाइम को मैंने 1 से बढ़ा दिया कि हाँ 1 सेकंड में स्प्रेड कर गया वो। फाइनली आई एम आउट ऑफ दिस, इफ़ आई एम आउट ऑफ दिस आई विल चेक इफ़ healthy region is 0, then that means return your time, नहीं तो फिर रिटर्न कर दो -1। कूल है, आई होप दिस इज क्लियर। कुछ रहता तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, हेल्दी था तो इसको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, इन्फेक्ट कर दिया। अब इसको करते हैं, रीड करके चला के देखते हैं जल्दी से। इंट इनपुट देन एम इंट इनपुट, फिर अपने ग्रिड लेंगे, ग्रिड होंगे, रीड लेंगे हम लिस्ट, तो करेक्टर्स रीड करने हैं, ग्रिड लेंगे तो करेक्टर्स रीड करने हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो इनपुट उसकी स्पेस हटा दी, फॉर, और एन ऐसे रीड करने, एन ऐसी स्ट्रिंग्स रीड करनी है, तो ये मेरी बन जाएगी ग्रिड, एंड आंसर मेरा आ जाएगा मिन। अगर मैं इसमें पास करूँगा ग्रिड एन कॉमा एम, प्रिंट करते हैं मेरा आंसर इफ़ इट इज़ ट्रू। लेट्स चेक, पास करते हैं इसमें कोई टेस्ट केस, यही वाला टेस्ट केस पास करते हैं। कौन सा था पहला वाला, ये वाला, आई एच 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 2 2 आई एच एच एच, तो 2 2 आई एच एच एच, लेट्स रन। कुछ गड़बड़ आ रही है, क्या गड़बड़ होगी, अच्छा हाँ ये वो नहीं होगा, क्या कहते हैं इसको, अपेंड होगा, ऐड नहीं होगा, ये अपेंड होता है इसमें, सॉरी फॉर दैट, यहाँ भी अपेंड होगा। अपेंड, -1,
Why? 1% बैटरी रहेगी यार. तो क्या गड़बड़ है इसमें, देखते हैं. -1 क्यों दे रहा है ये? एंड मैंने सही पास किया, सही पास किया है, लिस्ट सही पास की है. अच्छा हाँ, ये गड़बड़ है. अगर एच है तो ये यहाँ पे असाइन करेंगे. ग्रिड इसको इन्फेक्ट कर दिया. अब ठीक है. टू कूल है. एंड दूसरा एस से पास करके देखते हैं. और दूसरा एस क्या था इसका? आई एच हैश हैश एच एच. तो ये है 3 × 2 3 2 आई एच हैश हैश एच एच. -1 आना चाहिए, स्पेस नहीं है. -1 cool है. So that's the right code, and you can please check it out and code it yourself. This is your multi-source BFS, and it's pretty easy, just a simple build up over a normal BFS. If you have a knowledge of BFS, then you'll be easily able to solve this one. So that's all for this video, and I hope you enjoyed it, you learned something out of it, and I would recommend to solve this particular problem after you solve this one. This is very similar, and hope to see you all in the next one. Till then, bye bye, ladies and gentlemen.